Now then, to the outsider. In other words... So, it's a... Yes, no need to try. Everything is... This is precisely what... What? Alright, well... Suit yourself. Oh. Well, if you're quite sure, then of course. I say... Oh, nothing. It just seems extraordinarily By the way, remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of abstract... Well then, the door's open. Hop, I'll stay outside and provide what stability I can. I'm placing my god in your capable hands. For my sake, and for Inazuma's, please. Bring her back. Miko, you better know what you're doing! That's enough chatter. Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. You have returned. This is a duel to It is as if we over countless battle had I made all for your You bring honor. Now these two. Then, let this be our final duel. The conclusion to that which began Final duel? Stand back, traveler. I'm going to be the start of something new. The time our duels took to fight was long enough to witness the rise and fall of nations. The energy they consumed, great enough to vaporize the oceans and turn day into night. And the will they demand, sufficient to penetrate minds and crush dreams. You have endured. Will it? Witness the final calamity! There is no escape! In spirit! Illusion shattered! There is no escape! Shine down! In my hand! Transcend all constraints. The will I carry within me will never be eroded nor destroyed. In spirit! This I believed you... But a will that cannot be eroded. You need not worry. I know your... Yet... And whenever I think of this, I feel the blade that I noticed it all. This power. This blade belonged... It was at once... You have my approval. Your present will is not the product of erosion.
I shall no longer from this day forth. I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. You truly have changed. I suppose this is what humans call growth. I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting then? Like, for real this time? Hello, A. And greetings, those who have come to bear witness. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon, who failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? I'm so happy. You've come so far. I always knew you would make it here in the end. I left a faint fragment of my will in Muso Ishin, so that in the moment that you unleashed its full power, I too would be released. A convoluted way to reach you, but... well, you held such deeply entrenched views at the time that you wouldn't have listened to a word I said. There was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me. All I could do was find some way to wait until you came to me. But... you never mentioned this to me. Everything happened so suddenly. I'm sorry. I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you all of a sudden. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time, to dissuade you from your pursuit of stillness. Did you know what was about to happen in Conria? I had some sense of it. That place was not somewhere that any Archon could afford to ignore. In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, and I don't know what Inazuma has experienced in the meantime. But I know that this must have been an extremely arduous journey for you. And I'm sure you must have wanted to shed tears many times along the way. Don't look down on me. See? You admit it. It was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Something to soothe Inazuma's pain. Here, take it, before my last shred of consciousness fades away. But it is you who must take the most important step. The light turned into a seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole.
the vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. So the A of the present planted the sacred sakura in the realm of consciousness, and it took root in the Inazuma of the past. No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her understanding of eternity is much more profound than mine. Eternity is a concept intimately connected with time. When you begin to touch on eternity, the concept of time becomes murky. A place where time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. So that was the turbulence I was sensing. Perhaps that is the reason why you were able to return precisely to this point in time without any problems. And yet, that sense of disorderliness has now completely disappeared. I don't fully understand yet. But my intuition tells me that the reason for everything, it's that seed. Well, I'm not convinced that it was Makoto's power alone. I know what you mean. Perhaps Makoto got a higher power involved in all of this. But whatever the explanation, her solution is what saved us all. Without the sacred sakura, Inazuma would likely have been completely swallowed up centuries ago by that disaster and the filth. I know you've always perceived there was something special about the sacred sakura, but to me, it has always been there. You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred sakura and Makoto's consciousness, but unfortunately, you never did persuade me, did you? No, but I understand why now. It was because the sacred sakura hadn't even been planted then. But don't you think that tree looked a lot different than how it does now? The sacred sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I like it. Now we see who's pulling the strings. I'm joking. That tree has been through a lot since it first sprouted. We have a loving care of kitsune over the ages to thank for how it appears today. And obviously I played my part too. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. But in that same time, centuries of battling took place on the inside, did it not? Traveler, if I'm guessing correctly, you were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the flow of time within that space, suffice to say. Time added a whole new dimension to our search. Simply establishing a location was not sufficient. Fortunately, your will was strong enough that the turbulence carried you to the moment in time most likely to be the intersection of all that you were wishing for.
The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took everyone's efforts combined to ultimately help A. So this time, it looks like thanks are due to you. Does that mean it wasn't by chance that we ended up at the final duel? We were always meant to be there to witness what was going to happen? I thought that the flow of time was the same on the inside and the outside. So it was a great shock to me when the traveler... Good afternoon, guys. My first thought was, Good morning, Oriya. has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You came for my sake, to help me reach the best possible outcome. You too have my thanks. You have done much for me, and I will never forget it. A, how are you feeling now? My body has fully recovered, and the Shogun's will no longer fights against me. Always thrilled to hear you're in good health. But I was really asking about your emotions. Have you managed to calm down? After all, you saw Makoto in there, didn't you? I only heard her voice. I wouldn't say I saw her. I'll be fine. It brought a few things back, of course, but I've made my decision to move forward. I have to say, this has reminded me once again just how brilliant Makoto was. She predicted all the ways in which Inazuma's future could unfold, all the way back then. She even factored my immaturity into her plan. It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. I just planted a seed. Yeah, it was thanks to everything you did that you got to see her again. That's amazing! Thank you. Today, at long last, you and Inazuma finally emerge from the shadows cast by the events of centuries past. Makoto and you are Inazuma's past and future, and both are indispensable. It's rare to hear such comforting words from you. I graciously accept them. Oh, come on. You only think it's rare because you never used to listen to a word I say. Makoto said the exact same thing! Great minds think alike, hmm? I wonder, does that qualify me to, maybe, take the position of Shogun for a couple of days? Actually, no. Forget that. Far more trouble than it's worth. We will have to end the frivolities there. There is much work to be done. The Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where things currently stand. Then, we will give careful consideration to the future. After that, I will abolish the Sakoku decree. Really? That's huge news! I am no longer pursuing an eternity defined by stasis. In which case, there is no further need to keep the nation under lock and key. I don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. I'm looking forward to it. वडील वारल्यापासून कधी गेलेच नव्हते ते एकदा घेऊन गेले त्यांना तर ती अशी पाणी घेऊन जात होती आहे
तो कौन आया भाई बीसी पे? कौन आया कौन गया? Of the Electro Argon. May the blossoms Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Abolishing the Sakoku decree has a myriad of implications. It would be folly to say that it will be all positive, and there will be no negative repercussions. For example, I can foresee the outside world posing a threat to Inazuma's businesses. These are the issues that I must work to solve. Hey, you're thinking about this all so conscientiously. I've only got as far as wondering whether I'll be able to sell entrance tickets to the Grand Narukami Shrine in the future. Honestly, Miko, many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Makoto's gaze was always fixed on the people of Inazuma. I always assumed it was because that was her duty, but now I see that hers was a gaze full of delight and hope. It was not just a duty, but a joy too. She loved humanity very dearly. If the people of the past deserve the god's attention, then so do the people of the future. Indeed. No longer will I ignore their passions and dreams. Many challenges still lie ahead for, to put it bluntly, it was constant torture, with no end in sight. Faced with an endless battle, I had to remain focused at all times. Had my concentration lapsed for but a moment, the Shogun's blade would have taken my life. Safe to say, were it not for my previous experiences in combat, my skills would not have been up to the challenge. I would most certainly have been defeated. And through it all, you also had your part to play. Many challenges still lie ahead for Inazuma. But don't worry, I haven't forgotten. I will be sure to remind the Tenryo and Yashiro commissions of their duties in this regard. It's not only the monsters that I am worried about. I'm concerned about what else might escape from the sacred Sakura. That's a tough one, all right. There's plenty more besides memories held in the ley lines. Since you clearly understand, perhaps you could think about making an effort too. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for— Yai Miko said nothing of the sort, and the traveler has some nerve making up spurious claims about her while she is still present. Some words are not to be passed on. Trust me, you don't want to know the cost of betraying me. Just think of the things I said to you as our little secret. Understood? What are you talking about? Nothing. Ooh, I suddenly want some fried tofu. Many challenges still lie ahead for Inazuma. Many challenges still lie ahead. The Electro Argon. May the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally.
Solidify! Everybody stand back! Shake it and stir. Let's light it up! Time to go! Stabilize! Stabilize! क्या हो रहा है क्रिस्टी? हैं क्रिस्टी, क्या खेल रही हो तुम? ये कर रहा हूँ मैं, क्या नाम है उसका, गेंशिन। उसके बाद देखो भैया कितनी बार लाइट गई, दिमाग खराब। भाई सुबह से मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, साला एक स्टोरी जाके अब जगह कंप्लीट हुआ है। ओहो, मुझे मैं 10 बजे से खेल रहा हूँ। मैं एक आध गेम बीजी में खेल लेता हूँ, सोच रहा हूँ। ओह, खेल लो खेल लो। वो एक दिन खेला, फिर उसके बाद बोला मेरा मन ही नहीं किया यार, बोरिंग लगता है यार। मेरे को क्राउन पहुंचना है, मैं डायमंड 3 आ गया हूँ। तो क्राउन पहुंचना तो वैसे शायद इजी है ना, तो मैं खुद ही पहुंच गया था। नहीं, मैं उसके लिए पहुंचना था। तो मेरे क्या जो दोस्त लोग खेलते हैं ना, वो सब एस पे हैं। तो ये नए टीयर सिस्टम के कारण मैं क्राउन के नीचे नहीं खेल सकता उनके साथ। लेकिन मजाक में बात ये हो गई कि मेरा केडी बहुत ऊपर हो गया, 7 से ऊपर का केडी चल रहा है मेरा, और जबकि मैं डायमंड ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाला हूँ। क्राउन होके मैं सोच रहा हूँ अकाउंट बेचूंगा। मतलब अकाउंट नहीं बेचूंगा, मजाक कर रहा हूँ। बट फिर भी मतलब ये है कि हाई केडी की वैल्यू बहुत होती है, और कि जब से BGMI आया ना तो पुराने स्टैट सारे रीसेट हो गए थे। अगर केडी मेंटेन रहेगा तो सही रहेगा। चलो तुम लोग
Solidify! Shake it and stir. Stabilize! I'm going in! Solidify! Let's light it up! Gather! Teamwork is dreamwork! Off we go! Gather! Solidify! Shake it and stir. Let's light it up! Stabilize! Solidify! Let's light it up! Shake it and Gather! wish me luck. Chivalry will never. कौन है भाई? बता, भूल गया मैं। सही है, तुम बोलोगे तभी तो मैं याद रखूंगा ना, ऐसे कैसे याद रखूंगा? बताओ। ये तो लगातार बोल रहा कि बोलोगे तभी याद रखूंगा। और क्या? ठीक है, निकल जाते, बात नहीं करते, चलो।
कल थर्सडे है ना? कल थर्सडे। ओके हाँ भैया मेरे को थोड़ा सा खेल के देखते हैं क्या है भाई इसका। पहले ठोमा ट्राई करें, पहले यामी को ट्राई करें, बताओ। हेलो भाई सोमा किधर भाग गया? ओ भाई 90 एनर्जी कॉस्ट है इसकी। एनर्जी रीजन काफी करती है क्या ये? And casting and destroys a cooldown for 1 charge of Yakan evocation Sheshwa Sasura. सही है? Mashi Sakura damage. One reason character damage. अबे लेकिन ये तो फिर प्रॉब्लम है इसके में। एनर्जी रिचार्ज नहीं है क्या इसके में भाई? जब बाल है आपके पास तो ऐसा सवाल थोड़ी पूछे जाते हैं। नहीं तो बाल के साथ तो वो तो मुझे पता है, लेकिन जैसे जरूर थोड़ी ना कि हर एक के पास बाल ही बैठी है, खुद से भी तो उसको कुछ होना चाहिए ना। फिर वही बात, दूसरों को क्यों देख रहे हो आप? भैया अपन को अपना देखना है। गेम में दूसरों को देखना होगा, दूसरों को करेंगे। ऐसे काम करके सबको यामी को बाल गिफ्ट कर दो इस सीजन, टेंशन ही खत्म। रेंजर्स के जरा ई पढ़ना तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से एनर्जी चार्ज खुद से होगा जो है ये, मतलब कि जिनके पास नहीं है वाला एनर्जी चार्ज डालेंगे, एनर्जी चार्ज डालेंगे तो ये सच डेल्टास कैन बी कंप्लीटेड अप्लाई There are others available in increase version of damage by the side skill has 3 charges initial level is destroyed. अरे भाई इसमें तो कहीं है ही नहीं यार एनर्जी रिचार्ज का इसका। बिना शोगन के कैसे करेगी भाई ये काम? Personally, I think the idea of things नहीं staying करेगी the same सिंपल। forever is quite. आप निकालो फिर देखते हैं। little closer. निकलेगा का घंटा निकलेगा। कितनी गिटी है? Right now, show them. अभी मेरी कहाँ कुछ कुटी है? I'm always watching. देखा होयो वर्ष आ गया। हाँ देखो मैंने। Show them. Show them. शोगन अब इसका ई का कूलडाउन कितना कम है? Is that all? बहुत कम है भाई 3 सेकंड है भाई एक स्टैक का 3-4 सेकंड। Right now. स्पैम मार सकता है लगातार। हाँ भाई और फिर अल्ट Sight to behold. Right here. और जब भी अल्ट करती है तो इसका ई का वापस कूलडाउन पूरा रीसेट हो जाता है, हर पूरे स्टैक रहते हैं। मतलब तो उसका एक टैलेंट ये कि जितने भी अल्टीमेट में उसके वो लगेंगे ना, अल्टीमेट करोगे जितने ज्यादा उसके ई टूटेंगे उसके अल्टीमेट में उतना, लेकिन वो तुमको वापस मिल जाएगा, ऐसा है। सही है वैसे। तो मतलब अल्टीमेट करोगे तो अगर 3 के 3 लगे हैं, 3 के 3 टूटेंगे तो 3 के 3 को वापस मिल जाएंगे। 71 152 मतलब ये डीपीएस है क्योंकि इसमें स्टैट्स डीपीएस से ही दिए हैं। Kagura's variety. इनसे Kagura's chance effect when using under skill causing elemental damage to the header welding ठीक है। इसका वेपन में भी नहीं है भाई कुछ एनर्जी रिचार्ज, देना ही नहीं है इनको एनर्जी रिचार्ज। शिमिनावा और थंडरिंग डाला इन लोगों ने 2 पीस। तो तुम शिमिनावा के लिए तो वो भी डाल सकते हो, ग्लैडिएटर या फिर थंडरिंग फ्यूरी। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम 4 पीस उस पे जा सकते हो, लेकिन नहीं 4 पीस तो तुम्हारा काम नहीं करेगा सही। जैसे मैं वो कहा था ना लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि तुम्हारे पास एनर्जी रिचार्ज पे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें एनर्जी रिचार्ज डालोगे तो इसका वो कम हो जाएगा ना। इसमें डैमेज तो था, इसमें ये भी कोई डैमेज तो था। मैंने इसका बेसिक अटैक नहीं किया है, बेसिक अटैक करके देखते हैं भाई कैसा चलेगा। बात हो गई यामी को निकाले या फिर ये निकाले कागुरा
कगुरा क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। अभिषेक भैया ईआईएमई को निकाले या फिर ये निकाले, क्या नाम है कागुरा's वेरिटी इसका? नहीं Dear रेडी me. निकाले। Emerge. Nothing lasts forever. सवाल तो थोड़ा यही है। मेरे को डैमेज कर रहा है, मेरे Emerge. डैमेज कर रहा है तुम। लॉस वेलकम दे दो तो मैं एटलीस्ट Right सेव now. कर पाऊँ। तो लगता खुद ही समझ जाएगा ये। Emerge. Right now. A sight to behold. Right here. Emerge. चलो भाई वापस निकल लेते हैं। ठीक तो है, कैरेक्टर डैमेज है इसका, निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कैरेक्टर है। बस वही है कि तुम्हारे पास शोगन होनी चाहिए फिर, क्योंकि एनर्जी रिचार्ज की बहुत प्रॉब्लम होगी भाई इसको। एनर्जी रिचार्ज कहाँ से करेगी ये? ई उसका कम कूल डाउन है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिचार्ज होता है कि नहीं होता ये पता नहीं चल सकता ना यहाँ पे इससे, क्योंकि इसमें तो लोग खुद ही बता के रखते हैं ना कि इसमें वो ज़्यादा एनर्जी रिचार्ज देते हैं ताकि जो है पार्टिकल ज़्यादा ड्रॉप होते हैं। हाँ, इसलिए कुछ कह नहीं सकते भाई। So sorry. Don't get too close. Here is backup. I'm the frying pan. It's the Cool it. Don't get frostbite. Dodge that. You're toast. Booba, get them. Check this out. ये उड़ूंगा, मुझे हैक करना है ये वाला। हाँ? शोगन का हैक। तो शोगन को तो मैंने कर लिया, याइमिको का मेरा बाकी है, वो भी मैं करूंगा। क्या है शोगन में, मजेदार है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन बातें बहुत हैं। और वही तुम्हारा वो आ जाएगा वीकली बॉस। मैं आज वीकली बॉस को मारना ही भूल गया अपने, मैंने रेजिडेंट में वेस्ट उसमें यूज क्या कहते हैं ट्रांसफर कर दिया कंडेंस में। हाँ कैसा स्टोरी, मतलब बातें तो है पर कुछ कंटेंट है कि ऐसी मजेदार फालतू नहीं, बकवास? कंटेंट है जो है, उसमें मतलब बातें होती है, तुम्हारी शोगन के पॉपेट से भी लड़ाई होती है। लड़ाई तो होनी। Blitz. I'm a rock. Dodge this. Shake it and stir. Look at you, Boo Down. This moment will be frozen in time. Cool it. You're in for a little shock. Let's spark things up a little. लो ये अंदर तो आएगा हो कोई? गया। अंदर आएगा कोई? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। Come a little closer. Blitz. Dodge this. Don't get frostbite. Can't handle your dream. Huh? Think you can book? मतलब यहीं में तो यहीं कभी तो आ गया कोई। हाँ? मैं तो 4 दिन बाद खोल पाऊंगा, मेरे पास तो नहीं थी। Oh, so sorry. मेरे पास तो भी कितनी विशेष हो गई, 8-10 विशेष हुई हैं मेरी। पीडी कितने की है? 8-10 तभी तो बता रहा हूँ मैं, और क्या बोल रहा हूँ। पीडी मेरा आधा भी रखी है आपके। नहीं हो चुकी, मैंने क्या जब हो चुकी का मतलब क्या होता है? हो चुकी नहीं सुना ना मैंने। इधर 6 7 8 9 10 11 की पिट्टी है टोटल मेरी अभी कैरेक्टर की। 6 7 8 मेरे 49 की पिटी चल रही है, मैं 50 कर दूंगा उसे। चलो सही है, 50 काफी है। 50 की पिटी है मेरी एग्जैक्ट। Bet you can't keep up with me. Go, go. Cool it. 5-0 मैं Oz, reveal thyself. ज्यादा शोगन के लिए वेट कर रहा इसमें है। एम्बर आई है क्या? एम्बर आई है भाई इसमें। Dodge this. नहीं एम्बर नहीं आई है तो Let क्या it rain. एम्बर का क्यों दिया है भाई? मुझे क्या एम्बर का तो आई नहीं यार। Midnight Phantasmagoria. एम्बर कहाँ है टेस्ट में? नहीं आई है, नहीं टेस्ट में एम्बर ही है, Freeze. उधर स्पेशल है वो। ओके Frozen in time. मैंने टेस्ट में एम्बर क्यों दिया?
मतलब ये लोग कभी देते नहीं था ना, मतलब जो है तो ऐसे कैरेक्टर का। आप मेरे को शायद आज तक लोगों ने एम्बर को कभी नहीं दिया किसी भी टेस्ट में, मतलब किसी भी कैरेक्टर के साथ। तो ऑब्वियसली सबके साथ मिल जाती है शुरू में। नहीं, लोगों ने टेस्ट रन में कभी भी किसी भी कैरेक्टर के साथ एम्बर का नहीं दिया, ये मैं बता रहा हूँ। कुछ प्लानिंग होगी, बड़ी लेवल की प्लानिंग होती है। घंटा ही प्लानिंग होगी। कितने मेरे पास प्राइमो कितने हैं? 65 यानी को 6055 65। वाह 6550 प्राइम लेके घूम रहे हो और बोल रहे हो विशेष नहीं है। जबरदस्ती। 14 की पिटी मेरी वेपन पे चल रही है और 11 की पिटी मेरी कैरेक्टर पे चल रही है। परमानेंट पे क्या चल रहा है भाई? 3 4 5 6 38 की पिटी मेरी चल रही है परमानेंट पे। हाँ भाई, चलो थोड़ा सा वो कर लेते हैं। वो क्या होता है? नहीं वो क्या होता है? क्या होता है? वो क्या होता है? पता नहीं, लेकिन कुछ तो होता है भाई, मैंने पता किया था। तो ये तो कहाँ से पता किया? कांटेक्ट डिटेल्स सब दे दो। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। हमें पूछ के क्या है वो? अरे कौन ये फालतू अफवाह फैला रहा है? मेरा R2 वेपन है पता है, और मेरा उसका डैमेज जो है आता है कुछ 33 या 34 के आसपास आता है। उसको R5 करना है मुझे। R5 करने के लिए अपने को चाहिए और जो बहुत ज्यादा है नहीं। गानी मैक्स हो जाए यार। मैं इस बार वो सोच रहा हूं। मेरी 90 गानी, उसको 90 कर दूं क्या? 90 करने से क्या 40 तक तो पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से तब मेरा डैमेज उसकी वजह से घटा, मतलब 15 और 40 ऐसे आएगा अगर मैं उसको 90 कर दूंगा, अगर R5 है तो। किसको 90? गानियों को तो करो ना 90 क्यों? गानियों को 90 नहीं कर रहा। ऐसे ही क्या फायदा, उसमें ज्यादा वेस्ट हो रहा है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ना अरे गानी को बेसिक टैक्स बढ़ रहा है, एटलीस्ट फायदेमंद है। चलो मैं तो गरीब नाटक ही लाया यहाँ पे। यहाँ तो कुछ ही नहीं है। असेंड करने के लिए क्या चाहिए मेरे को? ये मार भी नहीं दिया। कीराउन भी नहीं दूंगा मैं कोर मार के आता हूँ। रुको कितने हो गए जरा देखें भाई मेरे पास। और 26 है एमेथिस्ट लंप। तो ये रहा, यहाँ पे थोड़े मिल जाएंगे 5 3 4। Solidified. कहाँ चले गए? अरे एक और पेड़ था भाई, वो एक और था, और वो ये रहा। और कहाँ पे है? इत्थे भी है, इत्थे भी देख लेते हैं। चलो पहले पीछे देखते हैं। ये तुम्हारे में एमेथिस्ट लंप है, मेरे को फार्म करना है। ये क्या होता है? इनाजुमा का और हो पड़ा होगा, मैं तो कुछ फार्म नहीं किया है। मेरे को चाहिए वो। मेरे को R5 करना है। R2 वेपन है मेरा यार। वैसे डैमेज तो उसका आ गया है, इतना तो मैं समझ गया। मेरा 248 क्रिट डैमेज है, 32 क्रिट रेट है। बताओ क्या हुआ? सिर्फ एक गाने के लिए आपने, सिर्फ एक गाने के लिए अपने चाइल्ड को, सॉरी अपने डायलॉग को भिखारी बना दिया। डायलॉग को दूसरा दे देंगे, उसमें क्या मतलब जो भिखारी नहीं भाई, अभी भी वो अच्छा है। 190 उसका क्रिट डैमेज है। देखो मैं दिखाता हूँ। जब से गेम चालू की 198 है भाई, 198 है। तुमको और क्या चाहिए क्रिट डैमेज? नहीं 2700 उसका वो है। और आखिरी में उसको ही भगा रहे हो? नहीं यार, ये क्या भगा क्या रहा हूँ मैं? अभी भी वो मेरा बिल्ड है भाई। 198 उसका क्रिट डैमेज है, 57 क्रिट रेट है। क्या चाहिए और? मतलब जो हमेशा, जिसने हमेशा साथ दिया जब से गेम चालू किया था, WGS भी निकलवाया गेम ने कि ले लो, उसको निकाल दिया। हाँ तो 2700 मेरा उसका अटैक है और 198 क्रिट डैमेज है।
और उसके दिमाग में भी एक ही चीज चल रही है, बिट्रेयल। हाँ वो अभी ये सोच रहा है डायलॉग, बिट्रेयल। क्या बिट्रेयल? ज्यादा तो थोड़ी ना हुआ है, बस 40% क्रिटिविटी तो वो डैमेज तो कम किया है मैंने। बिट्रेयल बिट्रेयल है वो बोल रहा है, अब उससे बात करो आप। बोल रहे थे ना? वो एक स्कालर का अकाउंट दे रहे हैं। ओह, कितने में? 2.5K में। ओह, तो लोगे क्या? हाँ, आपको लगता है सबको लोगे? ना लिंग, ना उसमें लिंग हीरो नहीं है, ना कबूरा है। एक फाइनिक्स का अलग 500 रुपये मिलता तो ले लेता। अगर 500 के नीचे मिल जाए तो ले लो। कोई भी अभिषेक में कहीं आपकी बात होगा, 500 रुपये को फाइनिक्स का अकाउंट दे रहा हूँ तो नाम बता दे रहा हूँ बस। 500, 5000 नहीं बोल रहा हूँ। हाँ समझ गया मैं, मिलेगा तो बोल दूंगा ना, मेरे को थोड़ा ना कुछ देखना है उसमें। आप बोल कर तो बंदे का वो है 5000। मुझे 5000 अभी तो मैं और अकाउंट दिलवाता हूँ। बाद में फिर मेरे पास आए, बोले अरे भैया 500 बोला था, 5000 नहीं। ये नए वो आए हैं कीपॉड्स में, बाय कर लो। वंडर सेट आए, इनने वंडर सेट वाइज डाली। क्या वंडर सेट वाइज? हाँ, कीपॉड में देखा नहीं? वो क्या चीज है? अरे वो हीरो फीड के फर्स्ट रहता है। अच्छा, तो वो तो मैं निकालता नहीं ना, वो तो मैं तो बस वही बाई करता हूँ केवल। अरे आप बाय करो, उससे मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ डाल दिए इनने। अच्छा। जैसे आज वो कौन लेता है? वैसे मेरे को लेना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अमले के मंडे को ही मेरा सब बाई हो जाता है, उसका ट्रांसजेंड भी बाई हो जाता है और वो भी बढ़ जाता है, यानी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं जितने भी वीक में कलेक्ट होते हैं। तो मैं कुछ शुरू कर देना चाहिए वो सब भी बाई करना। चाहिए तो वर्ल्ड में आ जाओ आपको सामान। हाँ रुक जाओ, मैं अपने में फार्म कर लूँ फिर आ रहा। मैं भी पहले ये जल्दी करो, मैं रिप्ले का अकाउंट स्विच करता हूँ तो उसमें भी कर लेना फिर। ठीक है फिर रुको, फिर मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, वो मैं बस डेली कमीशन के सामने खड़ा हूँ, क्लेम एक्सपीडिशन करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ। डोमेन तो मैं ऐसे खुद ही मारते रहूंगा। कल रात में आप डिस्कॉर्ड पे सो गए थे? नहीं, मैं चला गया था, मैं बाद में आया। आ जाओ वर्ल्ड में आ जाओ। मेरी बीपी की लेवल 1 हो गई। रिक्वेस्ट भेजो भैया। रुको 1 मिनट रुक जाओ, मैं और के पास आ गया हूँ, बस ई मार के, 2 बार ई मार के। हाँ भैया रुके हैं यार, रुके हैं यार, चिल्ला क्यों रहे हो? रुके हैं। Stabilize. तो किया नहीं। Solidify. ये जल्दी से खोलो अपना। हेलो सोमा। बोलो। ये खोलो, इधर आओ, इधर आओ। किधर होता है यार वो? ऊपर ही कहीं है।
एक इलेक्ट्रोग्राना लेकर आओ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मैं को खिला रहा हूँ। मैं अभी तक खोला नहीं यार, कितने सारे और मिलते हैं भाई उसके अंदर। अच्छा वहाँ खड़े हो। हाँ अरे हुआ, अब बताता हूँ। इसके आगे तो मैं नाडू का अपने साकुरा के लेवल बनाना चालू किया था। मुझे याद है, मैं यहाँ गया था, वो दिखा था लेवल छोटी है, मुझे उसने और भगा दिया था। मैंने कहा मैं आऊंगी नहीं वापस यहाँ, तो आए नहीं वापस। किधर मिलेगा वो वैसे? ऊपर होगा वो उस वाले पे। कहाँ है भाई वो? ऊपर रुको मैं टेलीपोर्ट करके आता हूँ। दिख गया इलेक्ट्रोगाना। आप खड़े रहो, वहीं पे कहाँ पे जाना है अपन को? रुको मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं टेलीपोर्ट कर लिया था। देखो यहाँ पे, हाँ उसी के नीचे देखो। Stabilize. बस चुल्लू भर। यहाँ पे पोर्टल आएगा पता है, इस जगह पे। कहाँ पे? इस जगह पे, यहीं पे तुम्हारा उसका है, क्या कहते हैं, वो शोगन का, हमारा जो नया बॉस है, वो इसी जगह आएगा। ओह नाइस। अरे मैं तो कल खोलेगा शोगन यार। एक कमीशन करना है मेरे को स्टोर, वो चाबी खोलने के लिए। मैंने क्या, वो कल ही मैंने ये निंगवांग और यूंजिन का ये खोल दिए। क्या? हैंगआउट क्या मुझे कभी करने नहीं है, पर खोल के बैठ गया। मैं तो सब तुरंत ही खोल के बैठा था। तुम क्लेम नहीं करते थे क्या? मतलब कीज क्लेम? अरे नहीं, मैंने क्या वो नहीं कीज क्लेम की थी, पर मैं ध्यान नहीं दिया। स्टोरी बहुत पहले कर ली मैंने निंगवांग वाली, पर खोलना भूल गया था। मैं कल ही नोटिस किया, तो मैंने कल खोल डाला। फिर याद है, अच्छा यार कल तो इन दोनों की भी आने वाले, तो कट गया मेरा। तुम उसका फिर कर भी नहीं सकते शायद। हाँ उसका तो नहीं कर सकते ना तुम। तो बस एक गॉली कर पाऊंगा ना उसका शोगन का कंप्लीट करने के लिए। कल कर पाऊंगा, कल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा आर्टिफैक्ट से करने हैं मेरे को, क्या करते हैं। तो साला आर्टिफैक्ट की कमी है, साला कुछ है ही नहीं अच्छा आर्टिफैक्ट। शोगन के भी आर्टिफैक्ट करने हैं वैसे ही। 50-105 का मेरा वो है उसका। एक ढंग का आर्टिफैक्ट नहीं था जो दे सकते। सॉरी क्ली पर बाहर ही रहना पड़ेगा। क्ली की जगह मैं रखूंगा डायलॉग, कुछ और डायलॉग यूज किया जाए। और डायलॉग में पहला वो था कैरेक्टर को मैंने 5 स्टार वेपन दिया था। और मेरे 66 हो गए। चलो एक का हो गया अभी, और वेपन का दे 2-3 और। ये क्या गोलमाल कर रहे हो? 3-3 ये क्या है? और जर्नी का आखिरी दिन आता है अभिषेक भैया, रश करने से कुछ नहीं होगा। फाइनल डेज वागोमुंडो। वागोमुंडो, हाँ भाई उसका नाम है वागोमुंडो। मेरा से अभी पता है, ऐसे एक शाओ है और एक कचिंग है, जिसपे मैं बोल सकता हूँ कि चलो आर्टिफैक्ट भी है, 4 पीस डिसेंट बिल्ड है, और 5 स्टार वेपन भी है, और सब मैक्स भी है। बस ये 2 कैरेक्टर हाल अभी तक है मेरे पास। मैं तो किसी भी कैरेक्टर का नहीं कह सकता कि उसका 5 स्टार वेपन है सिवाय डीलुक के। नहीं मैं शाओ का है ना, कचिंग का डीलुक और यूला दोनों मतलब फुली बिल्ड भी है। बताया नहीं बोल रहा हूँ कि बाकियों से बहुत अच्छी, मतलब फुली बिल्ड की मैं भी बात कर रहा हूँ। फुली बिल्ड मतलब सेट के साथ। सेट के साथ तो मैं बिल्ड नहीं हो पा रहा। मेरा जरूरत नहीं है, डैमेज तो आ ही जाता है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हाँ फिर भी वो तो सही कह रहे हो। और बस 20 तो हमें सबका बिल्ड रहता है। ये 20 में क्या है? यार स्ट्रिंगलेस मैक्स करना था 20 का। अच्छा दिलाया आपने। मेरा तो भी 80 है, मुझे खुद वो मैक्स करना है यार। अभी मेरा 20 लेवल है स्ट्रिंगलेस है। लेवल रिफाइनमेंट 1 चलेगा ना? R1 भी? हाँ मैं तो R1 ही यूज करता हूँ। सेकंड एडिशन से भी रखी है। पता है मुझे, पता है इस
एक्टिव वेपन वेपन मैंने पुल करना है। स्ट्रिंगलेस मिल रहा है मेरे को, वो मिल रहा है वेब ब्रेकर फिन, दोनों चाहिए मेरे को ये। पर दिक्कत ये है यार, अगर इस पे पुल किया तो साला फिर रेडियन पे कैसे पुल करूंगा मैं? मत करो ना फिर इस पे। कोई बचा रहा हूँ। 850 की बेटी है, 40 में चाहिए अगर निकालना है तो। देखो 5 अपन को मिल जाएगी उससे सीजन के एंड में अभी। और बाकी पता नहीं सीजन के एंड में 40 नहीं, 5 विश मिलेंगे अभी सीजन के एंड में। मतलब मुझे 35 और चाहिए। अब 35 कहाँ से ना होगा तो? मंथ के एंड में तुमको एक मिलेगा और एक और मंथ भी तो आ जाएगा ना। नहीं, एक और मंथ नहीं आ जाएगा। और तुम्हारा एबिस भी तो है। अबे 2 बार आएगा, 3 बार आएगा। 2 बार आएगा। 2 बार आएंगे। और तीसरी बार आ जाएगा। हाँ, तीसरी बार आ जाएगा। 1 2 हाँ 3 बार आ जाएगा। कमीशंस भी तो हैं तुम्हारे। हाँ, कमीशन हर कितना देते हैं अपन को? देखो 1 महीने में तुमको टोटल 1800 प्राइमो मिलते हैं। हाँ, तो अभी चालू कर लो। नहीं, अब आज से चालू करते हैं। अभी करंटली देखो मैं, अरे भाई मैं भूल गया, मैं भूल गया, इसमें पॉज नहीं हो सकता। अपना कल से करना है अभिषेक भैया। अपने पास देखो 0 प्राइमो है और अपन को 40 मतलब अभी अपन उतना ही रखते हैं कि 40 विशेष चाहिए अपन को निकालने के लिए रेडियन। तो कैसे मिलेगी? 5 विश मिल गए अपन को उससे। क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका? हाँ, मंथ के एंड में 450 1350 मिल गया अपन को अब इससे, क्योंकि लेवल 3 तक तो 9 स्टार हो ही जाता है। हाँ वो तो हो जाता है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी कितना आज डेट क्या है? 16 फरवरी ना। 20 दिन गिनो यहाँ से। 20 दिन मतलब कितना? 1200 करीब। 8 को होगा 20 दिन ना, क्योंकि 28 का ही महीना है। ठीक है, तो कितना 1200 प्रीमियम ही मानो ना। टोटल 1200 1350 टोटल 40 दिन सीधे गिन लो ना भाई। और अभी वेलकिन लगा देंगे। हाँ यार अभिषेक भैया, क्लॉस का बर्थडे, क्लॉस ने पार्टी दी नहीं। बीसी पे बैठा तो बोलो तो उसे पार्टी देने के लिए। बताओ भाई, क्लॉस बड़े आदमी को केक तक नहीं खिलाया है, तो गलत बात है क्लॉस। तो तुम लोगों ने तातारी गांव तो नहीं किया क्या अभी तक? इसमें तो पूरी तरीके से वही हो जा रहा है, क्या कहते हैं, खंडर ही आ जा रहा है फालतू पूरा टाइम। कौन सा करना पड़ता है मुझे पता ही है इसका लिए। वो कोर्स तातारी गामी के नाम से ही तो है, तातारा टेल्स। टाटा टेल्स से कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे इतना ज्यादा वो क्यों है भाई? 100 क्यों है? तुम्हें पूरा कंप्लीट नहीं किया अभी तक? टाटा टेल्स वाला मिशन पूरा हो गया भैया। अरे दूसरा होगा सॉरी, तातारा सुना, वो तो दूसरा है, ये इधर साइड में है। वो कोई दूसरा क्वेस्ट रहता है तुमको, उसमें उसको कुछ करना पड़ता है, मैं भूल गया क्या। अरे वो है कौन सा, मैं ढूंढ परेशान हूँ भाई। और कहाँ पे? इधर भी होगा शायद। क्या छोड़ते हैं, एमएल खेलने को आएगा अभी? अभी रुक जाओ भाई, मैं पहले ये कर लूं। हाँ अभी से मतलब कि अभी आधे घंटे 15 और चाहिए मेरे। दो वेपन बन जाएंगे फिर तुरंत। डालो कोई अच्छा अभिषेक भैया कि अगर आप कैरेक्टर चेंज भी कर लो तो पायरन फिर जाता नहीं है। जाता नहीं है। हाँ, तो जितने कैरेक्टर सब में चले जाता है। हाँ कचिंग का नहीं जाता ना मेरे ख्याल से। नहीं कचिंग का नहीं जाता। नहीं पर आईटी की बात है ना, इसका तो डैमेज बढ़ता है भाई। मेरा डैमेज ही नहीं आ रहा डालू का। मेरा भी डैमेज थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, क्योंकि 236 के डैमेज से सीधे 198 हो गया है। मेरा डीपीएस में 200 से मैं कम नहीं रख रहा हूँ ना। नहीं यार, पर हिट मेरा बस 8500 का डैमेज आ रहा है अल्टी में। हाँ तो कम आ रहा है भाई, तुम्हारा 15-20 आना चाहिए। और वो लास्ट हिट पे 10,000 पड़ रहा है बस। देखो अटैक 1800 है, फिर डैमेज 1700 है। अरे 1700 क्या बोल रहा हूँ, 170। 1700 बता रहा है। उतना होता तो अभी तक तो देखा वन शॉट होता। वो टोनी 2 का फिर पता नहीं कब तक खत्म हो गया होता भाई, तो तुम्हारा ही चल रहा होता। कहते पुराने लोग को भूल जाओ, नए आ गए। 1700 क्रिट डैमेज। एक बार और मारना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ तो भाई दूसरी जगह खड़े हो जाता हूँ। 5 कंडेंस पड़े हैं, क्या किया जाए बताओ भैया। यूज कर लो, और क्या करोगे।
मुझे समझ में नहीं आया करे कहाँ। चलो पहले वेपन मैक्स करते हैं यार भाई, इतने तो वेपन करने हैं यार। एक तो ये गांजू का हमें को 90 करना है, लॉस पे 2 सेक्रेट विंड्स को मैक्स करना है, फिर सैक्रिफिशियल वो मिल गया, फिर चंगुन का अको मारियो करना है। और अभी स्ट्रिंगलेस भी करना है इसका वेंटी का। भाई दुखी जीवन पड़ा है। और मटेरियल क्या है? ठेंगा। तुमको अकाउंट स्विच करना है? हाँ अभी रुक जाओ, आपका काम हो गया क्या? हाँ मेरा तुम्हारे वर्ल्ड में तो लेकिन जितने मुझे जगह पता है, बाकी मैं मार्क नहीं कर रहा। काम करो, हाँ आप अपनी वर्ल्ड में कर लो, बस कंडेंस कंप्लीट करके। और मुझे एक बार अपना एक क्रायो बॉस मारना है, फिर मैं भैया के अकाउंट लॉगिन करता हूँ। एक ट्रांजिएंट भी पड़ा है, चलो ट्रांजिएंट का भी फार्म कर लूंगा फिर मैं। ट्रांजिएंट अभी बचाओ फिर। एक तो मेरे पास एक और वॉर्टेक्स वैन कुछ पड़ा है भैया, उसको लेवल 1 ही रखा है मैंने अभी तक। इसका क्या करूँ ये भी बता दो। कुछ नहीं करो, उसको रखे रहो। और क्या मैं बताऊं, किसी दूसरे कैरेक्टर पे देखो कभी अगर जरूरत पड़े, जैसे कोई और आ जाए। अभी मैक्स इसलिए कर रहे हो कि वो मटेरियल बहुत लेगा, इसलिए मैक्स। हाँ वो तो लेगा, मैक्स मत करो उसको, वैसे पड़ा रहना। जब तक तुम्हें दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं मिलता ना उसके लिए, तो उसको मैक्स मत करना। क्योंकि देखो हो सकता है कि तुम्हें ये रिफाइनमेंट में यूज करना पड़ जाए बाद में। रिफाइनमेंट तो मुझे लगता नहीं कुछ खास है तो यूज। हाँ खा जाएगा ना वो, मतलब 5 स्टार का है तो उसका रिफाइनमेंट तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, ये समझ लो। फिर तो आसरा आएगा, अगर भैया को पता चल गया तो उल्टा वो बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया, 70 वर्ष जो लगाई बर्बाद करवा दी। कहते रिफाइन करना तो ठीक है, वो ब्लैक टेसर पकड़ देते, ये क्यों निकलवाया फिर? उसको पूरा बढ़िया R5 पढ़ते। अरे मैं स्ट्रिंगलेस कार्ड करूँ क्या? स्ट्रिंगलेस कार्ड करूँ या फिर मैं फेशियल को दे दूँ? फायदेमंद क्या है? तुम्हें जैसा ठीक लगे। अब मैं उसमें क्या बताऊं? डैमेज कितना बढ़ेगा? डैमेज कितना बढ़ेगा तुम देखते हैं ना, 30% हो जाएगा। 20 फेशियल का तुम्हारा तब अच्छा रहेगा ना जब वो रिएक्शंस करेगी। स्ट्रिंगलेस तभी अच्छा ही है, बिना रिएक्शंस के। क्या कर रहे लॉर्ड भैया? लॉली आया क्या किसी पे? बहुत देर से बैठे हैं, क्या बात कर पता ही नहीं आप? मुझे पता ही नहीं कोई। हेलो लॉर्ड भैया। लॉली क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है, लॉली अपना अकाउंट लॉगिन करना है मेरे को। एमेथिस्ट लम फार्म वो फार्म करना है। कौन सा इवेंट कर रहे हो लॉर्ड भैया? ये रेडन शोगन वाला। हेलो अच्छा तो चल रहा है कोई नहीं, किसी का आवाज नहीं आ रही आपकी। लॉली हाँ बोलना। कह रहा हूँ कि अपना अकाउंट लॉगिन करना है मेरे को। एमेथिस्ट लम फार्म करना है। वो अकाउंट में बैठे हुए हैं। आजा। हीरेन नाम ऐसा बोल रहा समझ में नहीं आ रहा है। कौन है एमएस लॉली? आज वेडनेसडे है ना? गुज्जर भी और बैठा है। आज वेडनेसडे एक्सेप्ट करना लॉली। लॉस फिर के मटेरियल फार्म कर लेते हैं। वाह भाई एक्सेप्ट ही नहीं किया। इफ यू वांट शोकेस योर कैरेक्टर। मैं गुंजन लॉली दोनों को भेज रहा हूँ, देखते हैं कौन एक्सेप्ट करता है। अरे अभिषेक भी आके डोमेन करवा दो। गुंजन ने किया था मेरे ख्याल से एक्सेप्ट, यहाँ तक मुझे लग रहा है। अभिषेक को पहले वर्ल्ड में आके डोमेन करवा दो ये। मैं ये बीच में गार्डन में हूँ शायद। हाँ गुंजन के वर्ल्ड में हूँ। ये इनका में क्या कर रहा है? फिर आ जाना, एक्सप्लोर कर रहे हैं शायद। ओह ये तूने गुंजन ने खोला अभी तक ये बॉस नया वाला? नहीं पता कैसे करना है तो उसका शोगन का तेरे को स्टोरी कोर्स करना पड़ेगा जो नया वाला आया है। लॉर्ड में आया कितना डैमेज आता है आपका बेसिक डाइफ में नॉर्मल? 5-6 हजार आता होगा ना उसका। किसका? आयाका का। हाँ वो तो 8000 आता है। 4 आता है। सही है तो। 4 अटैक की बात कर रहा है कि नॉर्मल? 4 अटैक नहीं नॉर्मल कितना आता है? नॉर्मल तो 7000 ही आता है। तो फिर अंतर क्या है चार्ज उसमें जो है? तो ऐसा चार्ज करो ही मत। पर चार्ज लगातार हिट पड़ते हैं ना उसके 3-4। चार्ज में 3-4 हिट लगती है नॉर्मल में की। फिर मेरा ही कम आ रहेगा डैमेज। मतलब कि 24,000 लगता है चार्ज अटैक। अरे लॉर्ड वेस्ट स्टैट्स क्या हैं अपने? स्टैट्स पूछ रहा है वो। 52 और 220। 52 और 220। और अपने कौन सा? 52 क्यों आया? क्या तुमने ब्लिजर नहीं डाला है क्या? हाँ ब्लिजर स्लेयर ही है। मैं तो 52 क्यों रखा है? क्रिटेड का निकाल के क्रिट डैमेज डाला। अरे वो ब्लैक स्वॉर्ड है ना, ब्लैक स्वॉर्ड
ब्लैक शॉट क्यों दिए भाई? कोई दूसरा दे देना वेपन उसको, क्रिट डैमेज वाला दे दे, अटैक परसेंटेज दे दे, तेरे लिए क्रिट रेट यूजलेस है समझ ले भाई। ओब्लिटरेट स्टेयर मैं निकालने वाला हूँ आया का वेपन अगले में। ये भी नहीं बड़ी बात है। चलो कोई काम की बात की किसी ने, चलो अभिषेक भाई छोटी बात करते हैं यार। क्रिट उसको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। यूजलेस है भाई ऑलमोस्ट। अभिषेक भाई छोटी बात ही करते रह गए। हाँ। वही छोटा जो क्या बोलते हैं वो। क्रिट रेट होगा तो हर एक हिट में क्रिट रेट लगेगा। वही तो भैया, अरे अब तो आप बताओ भाई अगर तुम्हारा क्रिट डैमेज बढ़ रहा है मतलब तुम्हारा कितना क्रिट डैमेज बढ़ जाएगा? मतलब तुम्हारा 50% का क्रिट डैमेज और बढ़ गया। देखो पहले, वो अरे पहली बात हर हिट की जगह ना तुम्हारे मान लो हर दूसरे में बढ़ तो तुम्हारा फायदा है ना। अरे लॉर्ड भी आपने देखा होगा कि जो आपका वो रहता है क्या बोलते हैं वेव शेयर का, आपको अगर पूरा बढ़ाना है तो फ्रोज करना पड़ता है कैरेक्टर को। तो पूरे उसके लिए हमें थोड़ी फ्रोज ही मारते कह रहे रहते हैं कि भाई तुम अपना 0 क्रिट रेट रखो। 20-30 क्रिट रेट है बहुत है, उसका तो जरूरत नहीं है उसको। 20 भी बहुत है। तुम उसकी बात करो। मेरा ये क्या कहते हैं, ये जो कैरेक्टर थी क्या नाम है एलॉय, इसका 22% क्रिट रेट था लेकिन हर एक हिट पे उसका क्रिट ही जाता था। मुझे पता है लॉर्ड भी मेरे को याद है, क्लॉज ने बोला था जिसका सबसे हाईएस्ट क्रिट डैमेज होगा उसको गोल्ड मिलेगा। अभिषेक भी चुपचाप बैठ के हर दिन कर रहे, एक क्रिट नहीं पड़ रहा था। अबे तो मैं उस पे कर रहा था ना यूला पे मैं, और मैं दूसरा क्रायो भी नहीं लेके गया था और उसका क्रिट रेट भी मैंने 32 कर दिया था, तब नहीं पड़ रहा था। अरे यार कुछ कर रहे हो यार, तुम मेरे सामने कर रहे 2 क्रायो थे यार, बेवकूफ बना रहे हो। नहीं 2 क्रायो थे ही नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भी पड़ी है तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा। यार सफेद झूठ, ये सफेद झूठ नहीं बर्दाश्त हो सकता अभी। कोई नहीं 90% क्रिट रेट होगा तो अच्छा है ना, हर एक क्रिट। वही तो यार, अब हर एक वही तो मैं तेरे को बता रहा हूँ। मेरा एलआई का 22 क्रिट रेट था लेकिन उसका ऑलमोस्ट हर हिट क्रिट जाता था। मुश्किल से कभी होता था कि उसका क्रिट रेट नहीं जाता है, वो क्रिट नहीं जाता है। अब आप बड़े आदमी हैं, हम यार वो 52 का तुम्हारा कुछ खास मतलब नहीं है ना। देखो बहुत ज्यादा क्रिट रेट देने का भी कोई मतलब नहीं है। अरे लॉर्ड भी आपका अटैक कितना है? और अभी वेपन तो होना चाहिए ना अच्छा वाला। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्रिट जो है निकाल के थोड़ा सा डैमेज और बढ़ा सकता है, फिर अटैक और बढ़ा सकता है, वो कर दो उसके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। अभी नेक्स्ट आया का है कि तब मैं वेपन निकाल लूंगा। अरे लॉर्ड भी आपके स्टैट्स कितने हैं काके? मतलब वो सॉरी अटैक। 1 मिनट में बातचीत खत्म करके बता रहा हूँ। अटैक देखा गया मैं 90%, अगर 90% करता हूँ तो मेरा 21 तो अटैक हो जाएगा, 205 क्रिट डैमेज और 54 क्रिट रेट। बताओ अभिषेक भैया सही तो है। किसमें कौन सा हीरो? आया का तुमने कौन सा आर्टिफैक्ट कौन सा डाला है? और पे देखो ब्लिज़र्ड की किस्मत में लिखा है मेरे। क्या भैया? कितना है आपका? 1800। मेरा भी उतना ही है, मेरा डैमेज काहे नहीं आ रहा? क्रिट रेट कितने में है? देखो ये मेरा अभी करंटली है 2080 अटैक, 195 क्रिट डैमेज है और 54 क्रिट रेट है। और आर्टिफैक्ट में बस अभी 2 पीस ग्लैडिएटर डाला हुआ है। अरे क्रायो डैमेज बोनस डालना है। हाँ अरे भैया वही बात है, आप भी वही बात करते, मिलने तो चाहिए यार, मिले तो जरा इससे भी क्रायो डैमेज बोनस तो तुम क्या बता रहे हो कि मैं कंप्लेंट करोगे तुम्हारा डैमेज नहीं आ रहा? तो क्रायो डैमेज बोनस नहीं पड़ा तो डैमेज कहां से आएगा? चलो डाल दिया आपने, बोला डाल दिया। चलो अब आगे भी बता। वो पता है कितना हो जाएगा? 79 तक पहुंच जाएगा उसका क्रायो डैमेज बोनस अभी। हाँ वो तो पता है, अभी जैसे मैंने डाल दिया। चलो अटैक हो गया 1800, ठीक है, अटैक 1800 हो गया, 61% क्रायो डैमेज बोनस हो गया, 198 क्रिट डैमेज है और 54 क्रिट रेट है। अभी मैं 90 में असेंड करूंगा तो वो 208 हो जाएगा, अभी करने वाला हूँ वहां से। अरे टैलेंट भी मैक्स नहीं मैं देखा अभी, मेरे 7 है, उससे भी डैमेज थोड़ा बढ़े तो बढ़ेगा, थोड़ा क्या बढ़ेगा, काफी बढ़ेगा। उसका 7 से 9 करना है। तेरा कितना डैमेज आता है अभी? चार्ज अटैक करूं 4500 तो करेगा तो 5000 ऊपर चला जाएगा। मेरा 9 है सारे। तभी आपका डैमेज ज्यादा आता है। उसकी स्केलिंग अच्छी है वैसे, पता है कितना है अभी? 7 पे है तो 9 पे 6% बढ़ रहा है, मतलब 8 पे फिर और मतलब 15% है सब पे, ऐसे हर लेवल पे बढ़ रहा है। तो डैमेज तो आना चाहिए। मैं देखता हूँ मैं करना क्या है आगे। मैंने ये डाल दिया है, मैं वो डाल सकता हूँ 2 पीस ग्लैड और 2 पीस ये क्रायो डैमेज बोनस वाला, पर एक मुझे अच्छा चाहिए कोई।
भूमिका सबसे ज्यादा हील है, मैं तो ये बहुत ज्यादा भाई, 6,000 करती है वो हील एक हिट में, उसका बहुत जल्दी हील होता है। अरे तो ये हील वही तो है कोई कि है भाई, वो कोई है ही नहीं बस दूसरा दिक्कत इसके एक ही आसपास। बस दिक्कत एक ही है ना, उसके अल्टीमेट में आती है बस heal। नहीं भाई, ई में बहुत हील है उसका, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ई में कभी E तुमने में भी हील है, देखा E का है? नहीं पता। हाँ, भाई E का नहीं तो पता, बोलो, बोल तो रहे 6,000 यार, आपको। हील अरे करती अरे है अरे भाई अरे वो अरे हील में। हाई, आप तो हाइपर हो गया बैठ गया। अरे 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 बोल तो रहा हूँ। हाँ, नहीं पता क्या भैया? हाँ, एक्सॉन टेक पता पता है है ना। और उसकी हाँ, अटैक check स्पीड भी करो। कितनी ज्यादा है भाई, 11,000 अटैक स्पीड भी कितनी ज्यादा है बंदे की। 11,000 हील करती है एक हर बार। हाँ भाई, और साथ में उसका क्रिट नहीं है, मतलब उसका हर बार 11,000 आएगा। तुम्हारे को ऐसा नहीं देखना कि भाई एक बार चलो आ गया, एक बार आ गया, दोबारा जो है देखो कब आता है। वही हर तो। बार आएगा उसका उतना ही, वो उसकी फिक्स चीज है। देखो मैं बता के रखा था सबको, बस फेदर वेट की एंट्री होने वाली है। भैया क्या कर रहे हो? चलो गुंजन, तेरे कुछ में काम हो नहीं, गया मेरा। मैं सबसे पूछ रहा हूँ कुछ करना ML था कि खेलते मैं हो या जाऊँ? नहीं रहा बताओ। कहाँ है? सब बोल रहे हैं फुद्दू गेम हो गया, खेलने का बिल्कुल मन नहीं करता। Osmanthus. कौन सा भाई? बताओ। खैर आप आ जाओ, अपन खेलते हैं। मैं आया थोड़ा टाइम में, 5-10 मिनट ठीक में। है। लॉली एक्सेप्ट कर भाई। रिक्वेस्ट ही नहीं आई। रुको रुको, एक बार कर रहा है फिर से। अरे इधर मैं वेपन एक बना लूं। मैं वेपन मटेरियल भाड़ में गया, मैं जा रहा हूँ आर्टिफैक्ट फार्मिंग करने। मैं वही रहूंगा अब कुछ। मैं 2 हफ्ते से ये ब्लिजार्ड स्लेयर ही फार्म कर रहा हूँ। ऐसे तो कहूँ मैं भी ब्लिज़र्ड यार। अरे मुझे बस एक अच्छा ब्लिज़र्ड मिल जाए कोई भी, या तो मुझे वो मिल जाए, क्या बोलते हैं ये वाला क्रिट डैमेज, मतलब सर्कलेट, या फिर गॉबलेट, तो भी चल जाए, कोई भी चल जाएगा। मुझे बस एक फ्लावर अच्छा चाहिए, तो फिर 220 हो जाएगा मेरा क्रिट डैमेज। रिफाइनमेंट 3 हो गया फ्लावर नहीं मेरा। आप मेरे फ्लावर है अच्छा, मेरा ये अच्छा नहीं है, क्या बोलते हैं गॉबलेट तो दिया ही नहीं है, गॉबलेट लेवल 2 का डाला हुआ है, फ्लावर डैमेज बोनस वाला, वो देना है मेरे को। तो कहाँ से क्रिट डैमेज आएगा? चल बे, जरूरत नहीं है, हो गया मेरा, 5 के 5 बन गए। हो जो अटैक परसेंट यार, ये कहाँ से डैमेज लाऊंगा, दुखी कर दिया अभिषेक भैया यार, क्या बोले। क्या हो गया? प्राइमो जेम बड़ा देने चाहिए कि आपको प्राइमो दो अपडेट पे। बड़ा छोटे प्राइमो देते हैं, 600 क्या है, गेम के 3 विश होती हैं बस। 3 विश में क्या करेंगे हम? एक 4 स्टार भी नहीं मिलता। चलो भाई, इसका हो गया R5 इसने याई में को निकाली क्या? R5 हो गया मेरा। किसी ने याई में को निकाली? पता नहीं। हाँ, यहाँ तो किसी ने निकाली, वहाँ सबने निकाल ली, एक्सक्लूसिव सबकी निकाल आई, और सबकी 32 की, हाँ 32 की वीडियो सबकी निकाल रही है। मैंने कहा भाई ये सही है यार, साला मेरी तो आज तक नहीं निकली ऐसी। चलो तो मैं भी ट्राई करता हूँ, पर मैं आया तो अकेले ले लूंगा। Stabilize. अरे चार्जर जैक तो काफी अच्छा है। पता ही नहीं चल रहा भाई, पहले ही एक हिट में मर जा रहे हैं यार ये लोग। ओह नाइस, ये मेरा 10,000 डैमेज का सही आ रहा है। अब मेरा 19,000 फर्स्ट हिट का डैमेज आ रहा है गानियों का, 19 से 20,000। सेकंड हिट का पता ही नहीं चल रहा भैया, हिलिचल्स मर गए भाई। सब लोग C6 निकाल के बैठे हैं। सब लोग यही में को C6 निकाल के बैठे हैं। Healthy body, healthy मेरा इसमें mind. 32 से 36 आ रहा है, वो सॉरी 32 से 38 आ रहा है इसके चार्ज अटैक का डैमेज। We're way behind schedule. सेकंड फॉर्म का अभी और कितने है जहाँ से मैं
We're way behind schedule. एक अभिषेक अकाउंट है, चाहिए आपको? कौन सा अकाउंट? ML का 5,500 में 3 कलेक्टर हैं। ओह नहीं चाहिए। बहुत सारी एपिक स्किन भी हैं। मैं नहीं ले रहा भाई, कितनी बार बताऊं मैं अपना अकाउंट रखना नहीं लेना होगा। नहीं लेना तो ऑप्शन ही नहीं कोई। आपने सिलेक्ट कैसे किया ऑप्शन, ये तो बताओ पहले। मैं अपने ऑप्शंस खुद बनाता हूँ। बताओ भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं ये क्लेम को नहीं कर पाया, समझ में मैं कोऑप में बैठा हूँ। सही है भाई, तुम ऐसी हरकतें करते रहो। ये तो भूख लग रही है यार, जल्दी कुछ खाने के लिए। अबे एलिमेंटल मास्टरी पे है यही भी को। हाँ एलिमेंटल मास्टरी बोल रहा लोग चाहिए उसे। मैं कह रहा हूँ भाई एलिमेंटल मास्टरी वो खाई क्या वो? एलिमेंटल मास्टरी क्यों चाहिए उसको? तुम आराम से उसको डीपीएस बनाओ भाई, डीपीएस बनाओ ना उसको फुल। एलिमेंटल मास्टरी को तुमको उसको ओवरलोड करना है क्या? जो उसका ई का डैमेज है वो हर एलिमेंटली मास्टरी का 0.15% से बढ़ेगा। क्या बात कर रहा है? ये मतलब अल्टी? नहीं ई मतलब उसका एलिमेंटल स्किल। अच्छा मुझे वो जरा देखने दो भाई। चैलेंज Advertise chest spikes nearby opponents for lightning when they are ये एमए को देखने में बढ़िया है यार। निकालने में कोई बुरी बात नहीं है। कहाँ लिखा भाई ऐसा? When casting great secret art Tenko Genshin each session Sakura destroy research the planet ये अच्छा every points of render mastery ये मेरे को possesses will increase Sasho Sakura damage by 0.15%। ये है ऐसा। हाँ तो ठीक तो है। अच्छा तो एलिमेंटल मास्टरी पर डाल दो और क्या थर्ड में अटैक परसेंटेज एलिमेंटल मास्टरी डाल दो। पर बिना अभिषेक भी एक चीज नोटिस करना, बिना अल्टी का डैमेज नहीं है इतना। नहीं बिना अल्टी का डैमेज थोड़ी ना ज्यादा। तो कभी अच्छा डैमेज है उसके ई का बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है, तुम उसे एलिमेंटल मास्टरी को पूरी तरीके से हटा भी सकते हो क्योंकि वो सिर्फ शायद ई का ही बढ़ा रहा है ना मेरे ख्याल से डैमेज। क्यों का नहीं बढ़ा रहा ना उसका कंटीन्यूअस डैमेज देगी ना पर। हाँ लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं देता है। वो 3 तुम लगा सकते हो एक बार में, वो बात अलग है। कूलडाउन भी उसका कम है। वो एलिमेंट्स बहुत रिचार्ज करेगा। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ ये शोगन के बिना ना उसका एनर्जी रिचार्ज में बहुत प्रॉब्लम होगी। उसकी 90 कॉस्ट है एलिमेंट वो उसकी जो है क्यू की। शोगन तो पर मैं पता नहीं क्या टाइम के पहले में अल्टीमेट आ जाती है। तो ये अल्टीमेट मारा फिर मारते रहने का, तो तेरे टाइम के पहले ही अल्टीमेट आ गई यार। पर लॉर्ड वे क्या ही तो एनिमेशन स्केल्ड का यार, देख के मजा आ जाता है। यही तो एनिमेशन के तो पैसे दे रहे हम लोग। डैमेज तो क्या, डैमेज तो आता रहेगा। डैमेज तो आता रहे, लोग देखेंगे तो लेते हैं स्किन। सॉरी हमें तो मॉन्स्टर मरने चाहिए, डैमेज का क्या है? वही तो ये बात सही है कि नहीं अभिषेक भैया? बस मॉन्स्टर मरने चाहिए। और क्या। अब भले वो 10 शॉट में मरे या 50 शॉट में मरे, लेकिन लॉर्ड भी अबे ये रेडन का पता नहीं हुआ है कि तुम्हारे मतलब मॉन्स्टर्स मारने में प्रॉब्लम हो। ये रेडन का पता है कुछ ऐसा है कि कुछ टाइम तक वो वही होगी कि क्या हो गया? वो पता है पायरो क्यूब है ना, वो फील होता है पता है उसका कुछ। पायरो क्यूब? हाँ क्या हाइपोस्टेसिस है ना वो। हाँ उसमें पता है वो फील होता है, उसको मारते हैं तो धीरे धीरे क्या फील होता है? क्या फील होता है? वो रेड कलर का नहीं होता साइड में उसके एचपी में, वो फील होता है। तो उसमें तुम हाइड्रोजन सही है रेडन, वो फील होगा तभी वो रोबोट मोड में जाएगी वरना नहीं जाएगी। ओह मैंने अभी तक बॉस को मारा नहीं है। वो उसके पहले मार देगा तो कुछ वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। रुक जा मैं मार के देखता हूँ एक बार कैसा रहता है। क्रायो का कुछ इम्यूनिटी तो नहीं है? मैं गानी लेकर जा रहा हूँ। कोई इम्यूनिटी नहीं। तो ठीक है मार के देखते हैं एक बार। क्लेम करने के लिए मेरे को वो यूज करना पड़ेगा। क्या नाम है उसका, जो भी नाम है उसका, क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिएंट। बस 28 रेजे नहीं है, 30 चाहिए उसके लिए। ये क्या है? मगात्सु मिकाने मिटाके नारुकामी नो मिकोटो
क्या नाम है? Will continuously absorb ominous destiny and will gain more upon hitting characters. When ominous destiny is filled up, she will enter the baleful shadow lord form. While she is in the form, active characters will lose elemental energy at intervals. Magatsu Mitake Narukami no Mikoto will gain great damage res and deal more fatal attacks. Use the appropriate elemental attacks to disable this form more quickly and obtain energy in the process. तो देखा जाए तो क्रायो उसका काउंटर भी है साथ में. इलेक्ट्रो में हूँ. Born of ice and frost. वे ए बार बार अटक जाती है. नहीं, इसको नोबलेस डाल के रखा है. ये कैसे है? हाँ, उसका नोबलेस डाला भाई. मैं अभी वही देख रहा था. Inferior. ये तो यही भी बनने आ गई. Sweeps the lands. Stabilize. Access denied. गेम बनाने वालों को ही पता नहीं क्या डालना है. हाँ वही तो. खुद लोग हैं भाई. Strike dead. Lightning falls on the land of eternity. Stabilize. Let's dance. This body is eternal. Inferior. This is order. You can bully me. Perish. Solidify. No touching. Witness the final calamity. Follows my blade. Gather. Inferior. Purge all obstacles. Answer. Eternity is in my hands. There is no escape. Access denied. I can fix this. Solidify. I will have order. Second answer. Please. Lightning, obey me. Solidify. Let the show begin. Born of ice and frost. This world, a fleeting shadow. Second answer. Illusions are but distractions. Gather. No touching. Thunder. Lightning does not bend to the will of mortals. Stabilize. This body is eternal. We're way behind schedule. Next on the agenda. बॉस आईफोन 13 कब ले रहे हो? Followed by blade. Think you can bully me? Perish. Inferior. This is order.
Next on the agenda, Born of ice and frost. Calamity! Access denied. We keep it fully made. Is in my hand! next on the agenda. We're way behind schedule. अभिषेक भी एमएल आ जाओ। लॉर्ड भी आ पा रहे, I'm here. कदर भी आ रहे। Crumbles before me. दिया उसको थोड़ी देर रुक जाओ, जब फेदर भी अभी आ जाता है ना। अभी तो टफ बॉस लग रहा है अभी तो। टेंशन में बैठ रहा हूं अभी। फर्स्ट टाइम मारो तो सभी को टफ तूने लगता है। तूने पहले मारा अजदा ये इसने मारा इसने क्या भैया? क्या नाम है इसका पहले अजदा मारने में कितनी मुश्किल लगती थी। सोचते अरे भाई हाँ, मरता वो ही तो नहीं है। बंदा। वो मेरे सामने 3 बार वो हुई, पता है 3 बार क्या कहते हैं अपने वो वाले फॉर्म में आई। उसके बाद अबे वो जाके टेक्टो ने तो उससे पहले ही मार दिया बोल। अरे तो वो लोग अलग बात है ना भाई, वो C6 लेके बैठे हैं। वेल है सारे वेल। पता है अभिषेक भी आप ही रहेगा यार, वेल नहीं बनता यार। Next on the agenda. उम्मीद हमारी बड़ी थी पर आप छोटे हो गए। अबे रेडन को कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, बस वो तेरे को स्टोरी जाननी है। नहीं तू तो स्टोरी तेरे को पता ही चल गई होगी ना, तूने तो कर ही लिया ना फर्स्ट। We're way behind schedule. नहीं वो कह रही है कि कुछ कोई बुला रही है उसको। क्या बुला रही है उसको मतलब? तूने स्टोरी नहीं किया पता नहीं, अभी तक वो शोगन की? नहीं अभी चली गई है। कैसे पता कि वो मारने में टाइम लगता है या वैसे वैसे? तूने वो वीडियो देखी? वो टेक्टोन देख रहा है, ओह। टेक्टोन का वीडियो देख। अरे वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है कि जब वो अपने दूसरे वाले फॉर्म में जाती है ना, उसका एलिमेंटल डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है भाई। मेरा गांजू का क्रिट उसके पे 4-4 हजार पड़ रहा था पता है, और उसके नॉर्मल फॉर्म पे 40-40 हजार आ रहा है और इस पे 4-4 हजार का पड़ रहा है। मतलब मियो से होयोवर्स हो गया है। Agenda. हाँ होयोवर्स हो गया मियो से। ओए Way ओए behind schedule. नाम भी टट्टी दिखाया, मियो तो बढ़िया नाम था। सब लोग हॉर्नीवर्स हाँ, की फिर तरफ भी से आ है। रहे। आई मेरे को कहाँ गई? आई मेरे को अभी आई फेदर भी एमएल आ गया 1-2 गेम। आ जाओ भैया आप लोग, कोई आ रहा है तो। क्या क्या बोला अभिषेक भैया, आपने सुना ही दिया। गेंशन को कुछ कर रहा हूँ फिर आता हूँ। Oh, टाइम good. लगेगा आपको तो। I was just thinking. Lord, about yeah, those bye, Abhi. flowers at the Fayun Commerce आया। Fair needed watering. चलो The transport coordinators will probably moan about the muddy mountain roads again, though. Next on the agenda. एक्टर भी है। सपूरा है, बाद में अभिषेक भी आ जाओ, टाइम मैन हो जाएगा। जल्दी आ जाओ यार, वो बाद में कर लेना। जाओ। क्या लोग वेट कर रहे हैं। हाँ लॉर्ड, अरे हाँ एको का नोट डीएस से ऑफलाइन चलेगा। अच्छा लॉर्ड भैया, हाँ इसका एम्बलम बता ना। इसके लिए कौन सा एम्बलम रखते हैं अपन? एस्मराल्डा के लिए मेज में कौन सा? वो वही अपना क्या रहेगा स्टैट्स? पहले में मूवमेंट स्पीड 90% कर देते हैं। नहीं चावल है, अब वो दे दो बस। हाँ हाँ क्या बोल रहे थे भैया? जो वो नहीं है 90% प्राइस कम कर देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। और बाकी दो बाकी दो 5 सेकंड मतलब पहले में मूवमेंट स्पीड और दूसरे में वो पेनिट्रेशन वाला, या उसमें अलग रहेगा कुछ?
आवाज आ रही है? दीदी आ रही है बराबर बराबर। देख, एक तो सीडी रिडक्शन वाला, पहले वाले में तीनों सीडी डाला रिडक्शन। है मैंने। ठीक है, नहीं पहले वाला में तीनों में सीडी रिडक्शन ही किया या फिर मूवमेंट स्पीड में भी कुछ डालना है? तीनों के तीनों सीडी रिडक्शन। दूसरे वाला है मैजिक पावर। लॉरिएट की आवाज है। ठीक है, हो गया। मैंने पहली बार सुना। बताओ भाई। अरे ये बहुत म्यूट रहता था, एटलीस्ट मैं जब रहती थी तो। This realm is गुंजन का बर्थडे है। ये बताओ बताइए आपका यार। फेडरेश नहीं है। बोल दो। अरे मैं बोल रही थी गुंजन का बर्थडे है ना। गुंजन पार्टी कब दे रहा है? वही तो यार, बताया नहीं उन्होंने यार। बड़े आदमी बताया, पार्टी नहीं दी। अच्छा गुंजन बैठा है फर्स्ट में। ओह माय गॉड। अरे बताओ, हम क्लॉज को बुलाना भूल गए। क्लॉज अरे चलो आपकी बर्थडे पार्टी में मैं लाऊं फिर। मैं छोड़ दिया। बड़ा सूरत आ जा। आ जाएंगे, उसमें क्या है। जाओगे। अब तो जैक में बड़े आदमी कनाडा से मन कहेंगे, बस एक कॉल करना है, डायरेक्ट फ्लाइट भेजेंगे, पर्सनल बॉडीगार्ड भेजेंगे। हाँ भाई, जैक गया कि नहीं? किलॉस आ गया। जैक गया कि नहीं? अरे भाई बोल भाई, नाम लिया हाजिर। जैक भी अभी तो 18 को निकलने वाले था। जैक भी अभी पैकिंग वैकिंग चल रही होगी उनकी, मुझे लग रहा है। सच में हम खेल रहे हैं क्या? गुंजन सही में खेल रहा है।